This is for class 8. Chapter is cell structure and function. In this part, we will study the different cell organelles in detail. Okay, let's start with endoplasmic reticulum. The short form is ER. What are cell organelles actually? The cell organelles are nothing but the small structures scattered in the cytoplasm. In the previous videos, I have told you the different cell organelles which are scattered in the cytoplasm, like endoplasmic reticulum is there, Golgi apparatus, plastids are there, lysosomes, ribosomes, so many are there. So in this part we are going to study these cell organelles in detail. So our first cell organelle is endoplasmic reticulum. Short form is ER. Now this endoplasmic reticulum is absent in prokaryotic cell. Okay, and it is present in all eukaryotic cells except germinal cells and RBCs. What are germinal cells? These are the cells which produces sex cells or gamete cells, right? Like sperms in male and eggs in female, right? So germinal cells are nothing but which produces sex cells. Then RBCs, in RBCs, this endoplasmic reticulum organelle is absent. Okay. Let me show you the diagram of endoplasmic reticulum first. Okay, this is a plant cell. Now, where is the endoplasmic reticulum present in plant? See, endoplasmic reticulum is of two types. One is the smooth endoplasmic reticulum and the other is the rough endoplasmic reticulum. Okay, so just see over here, the endoplasmic reticulum, right, which is surrounding the nucleus, which is near the nucleus, is called as rough endoplasmic reticulum, right? And the one which is near the cell membrane, okay, the one which is, see these violet color organelles which you can see over here, these are nothing but smooth endoplasmic reticulum. Now, what is the difference between rough and smooth endoplasmic? That we are going to see in detail. Similarly, in animal cells also, see here, these are the smooth endoplasmic reticulum which are present near the cell membrane, outer membrane, okay, and this rough endoplasmic reticulum, it is near the nuclear membrane. So that is the first difference between smooth and rough endoplasmic reticulum, that smooth endoplasmic reticulum is near the cell membrane and rough endoplasmic reticulum is near the nuclear membrane. Okay. Now, how is the structure of endoplasmic reticulum? See, it is a complex network of membrane-bound channels or sheets, tubules and vesicles. I will show you the diagram again. It may be connected to plasma membrane as well as outer nuclear membrane, that we have already seen. Okay, now let me show you what are these channels, tubules and vesicles. Okay, just see this green, this is nothing but the nucleus, then surrounding that is the nuclear membrane. Now see, what you see near this nuclear membrane, this is nothing but rough endoplasmic reticulum. So what we are saying, it is made up of this sheets. Just see these are the sheets, पतली पतली sheets होती है, right? और vesicles होती है ऐसे ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में, उसको वेसिकल्स बोलते हैं, या तो ट्यूब्स के फॉर्म में हो सकता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको हम लोग बोल रहे हैं ट्यूब्यूल्स. तो शीट्स के फॉर्म में भी हो सकता है, वेसिकल्स या ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में भी हो सकता है, और ट्यूब्स के फॉर्म में भी वो हो सकता है. ओके, जस्ट सी दिस डायग्राम. यहाँ पे देखो, एक के बाद एक कनेक्टेड शीट्स दिखाई दे रही है, राइट? उसके बाद ये जो है, ये व्हाट इज दिस? दीज आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स. और ये जो ट्यूब्स ट्यूब्स जो होती है वो ज्यादा करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है या सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसके पास दिखाई देता है. ओके,
Now, endoplasmic reticulum is of two types: smooth endoplasmic reticulum, short form is SER, and rough endoplasmic reticulum, short form is RER. Now, what is the difference between smooth and rough endoplasmic reticulum? We will see smooth first. It consists of tubules and vesicles. See what we have said, endoplasmic reticulum is made up of sheets, tubules and vesicles, right? तो उसमें से smooth endoplasmic reticulum is mainly made up of tubules and vesicles. Tubes और globules के फॉर्म में, वैक्यूल्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है. ओके, देन इट इज फ्री ऑफ राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस. उसका जो सरफेस होता है, मेम्ब्रेन जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का, उसके ऊपर राइबोसोम्स जो होते हैं, राइबोसोम्स क्या होते हैं आगे देखेंगे, राइबोसोम्स जो होते हैं वो अटैच्ड नहीं होते हैं. Okay, and it lies near the cell membrane. Just now we have seen that, and it is specialized to synthesize lipids. बनाते क्या है वो, synthesize क्या करते हैं वो, lipids बनाते हैं. Now what are lipids? Lipids मतलब, lipids are nothing but fats, oils, waxes or steroids. These are the different forms of lipids, right? इसका काम क्या है lipids का? Energy storage is one of the function of lipids. Then protection, insulation, during cell division also it plays a vital role. ये उसके सारे functions है of lipids, right? Then again we will see the diagram. Okay, just see, this is a smooth endoplasmic reticulum. What we have said, it is located near the cell membrane. तो ये जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके पास होता है, उसके वॉल के पास वो होता है. दूसरा देखिए, उसके ऊपर इसका जो मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स जो है, okay, ribosomes are not attached, whereas here you can see, here in the rough endoplasmic reticulum you can see ribosomes are attached to the walls of rough endoplasmic reticulum. That is why it is called as rough, because small ribosomes are, spherical ribosomes are attached on its outer membrane, whereas these are free of ribosomes. Okay, then smooth endoplasmic reticulum synthesize lipids. Okay, so what are lipids? Lipids are nothing but, it is nothing but waxes, then fats, oils, steroids. Okay, then आगे देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. नाउ इट कंसिस्ट ऑफ शीट्स. इसमें बोला था हमने कि ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स से बना होता है. यहाँ पे क्या है, दीज आर मेड अप ऑफ शीट्स और चैनल्स जिसको बोलेंगे. देन इट हैज राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन इट्स सरफेस. राइबोसोम्स अभी हमने देखा कि उसके मेम्ब्रेन के ऊपर, आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स चिपके हुए हैं. इट लाइज नियर द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इट लाइज नियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. देन इट इज स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स. ये बनाते क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सिंथेसाइज क्या करता है, बनाता क्या है, वो बनाते हैं प्रोटीन्स. नाउ व्हाट आर प्रोटीन्स? प्रोटीन्स भी जो होते हैं वो सिंपल अमीनो एसिड्स की जो चेन होती है उनसे बने हुए होते हैं. कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो सिंपल टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं. मतलब अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जब लिंक करते हैं तो चेन्स बनती है. कुछ चेन्स शॉर्ट होती है, सिंपल होती है, तो कुछ चेन्स जो होती है वो बहुत लंबी होती है. और वो चेन जो होती है अमीनो एसिड्स की, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन्स. प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या है इन आवर बॉडी? इट हेल्प्स इन रिपेयर वर्क में, राइट? बहुत सारी सेल्स डैमेज होती रहती है कॉन्स्टेंटली, राइट? मिलियंस ऑफ सेल्स डाई एवरी सेकेंड एंड न्यू सेल्स आर बिल्ड, राइट? सो रिपेयर वर्क में. देन बिल्डिंग योर बॉडी टिश्यूज, क्योंकि टिश्यूज किससे बनते हैं? सेल्स से बनते हैं, राइट? तो टिश्यू बनाने हैं अगर बॉडी में तो क्या करना होगा?
सेल्स बनानी पड़ेगी, और सेल्स कब बनेगी? विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोटीन्स, राइट? देन इट अलाउज मेटाबॉलिक रिएक्शंस टू टेक प्लेस। हमारी जो सेल होती है उसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस कॉन्स्टेंटली होती रहती है। ओके तो उसको गाइड कौन करता है? दीज प्रोटीन्स। सारी रिएक्शन किसकी मदद से होती है? प्रोटीन्स। आपको पता होगा कि जो एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, दूसरे फ्लूइड्स होते हैं सेल के अंदर, वो एक्चुअली है क्या? वो सारे के सारे प्रोटीन्स होते हैं। हमारे सेल के अंदर जो डाइजेशन प्रोसेस होती है वो एंजाइम्स की मदद से होती है। ओके सो बायोकेमिकल कैटलिस्ट्स बोलते हैं एंजाइम्स को। वो मदद करती है डाइजेशन प्रोसेस में। तो वो एंजाइम्स क्या है? वो एंजाइम्स खुद ही प्रोटीन्स होते हैं। सी द डायग्राम अगेन। देखिए यहाँ पे ये जो है दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर देखिए राइबोसोम्स चिपके हुए हैं यहाँ पे। लेकिन ये वाला जो है ये दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर कोई राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं है। Now let's see what are the different functions of endoplasmic reticulum. See first, it acts as a cell circulatory system and helps in transportation of materials in a directional flow. देखिए अभी बताया कि हमारे सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, वो सब की सब प्रोटीन्स की वजह से होती है, राइट? और वो प्रोटीन सिंथेसाइज ही कहाँ पे होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में, राइट? जिस ऑर्गेनेल को जिस पर्टिकुलर सॉलिड या मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है या मटेरियल की जरूरत पड़ती है, सब की सब ट्रांसपोर्ट किसकी मदद से होती है? विद द हेल्प ऑफ दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे बॉडी में भी होती है सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट? ब्लड जिसमें से फ्लो होता है, राइट? तो ब्लड क्यों फ्लो होता है? बिकॉज ईच एंड एवरी सेल ऑफ अवर बॉडी रिक्वायर्स न्यूट्रिएंट्स विच आर प्रेजेंट इन ब्लड। दैट इज व्हाई वी नीड टू सर्कुलेट ब्लड इन अवर बॉडी, राइट? सिमिलरली सेल के अंदर जितने भी फ्लूइड्स होते हैं या न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, राइट? तो थ्रू आउट द सेल इट इज टू बी सर्क्यूलेटेड, राइट? क्योंकि हर एक ऑर्गेनल को वो उस चीज की जरूरत होती है। तो किसकी मदद से सर्क्यूलेट होंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। देन rough endoplasmic reticulum is the site of protein synthesis. rough endoplasmic reticulum बनाते हैं प्रोटीन्स which are very very important. देखिए हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, अलग अलग टिश्यूज होते हैं, जैसे ब्लड, देन बोन, कार्टिलेज, मसल, स्किन, ये जितने भी टिश्यूज है, ये अलग अलग टाइप के टिश्यूज होते हैं जो आप क्लास 9 में डिटेल में पढ़ेंगे टिश्यू चैप्टर में। ओके सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो ये सारे के सारे जो टिश्यू होते हैं वो बनते किससे है? विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटीन्स। वो खुद प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं ये जितने भी टिश्यूज है। ओके Then rough smooth endoplasmic reticulum is the site of lipid synthesis, right? This we have already seen. Then it helps in storage of synthetic products like glycogen. What is this glycogen? It is a form of glucose. तो ये कुछ functions है endoplasmic reticulum के। आई होप दिस इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है विच इज प्रेजेंट इन साइड द सेल, राइट? एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस और टू प्रिपेयर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये जो दो फंक्शंस हमने यहाँ पे लिखे हुए, एक प्रोटीन बनाना और दूसरे का काम है लिपिड्स बनाना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा हम लोग बोल रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज नथिंग बट द सेल सर्कुलेटरी सिस्टम। सारी की सारी चीजों का जो सर्कुलेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स जो होता है, वो होता है विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। Okay, now the next cell organelle is Golgi apparatus. Now again it is absent in prokaryotic cell. हम बोल ही रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, तो राइट इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल में ये गोल्गी apparatus एब्सेंट है, यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होता है। एक्सेप्शन है अगेन स्पर्म सेल्स एंड आरबीसीज,
राइट। आरबीसी में गोल्गी एपरेटस नहीं होता है, स्पर्म सेल्स जो मेल में होते हैं उसमें भी गोल्गी एपरेटस नहीं होता है, राइट। अगेन सेम, इट इज मेड अप ऑफ शीट्स, वैक्यूल एंड वेसिकल्स। अगेन वी विल सी द डायग्राम. Again, see the diagram. See here. Golgi apparatus is also called as dictosome. Okay, प्लांट में अगर प्लांट सेल में प्रेजेंट है तो उनको बोलते हैं डिक्टोसोम्स. अब देखिए, ये देखिए साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड है दिस इज गोल्गी apparatus in plant cell and this is Golgi apparatus in animal cell. Okay, now we will see the detailed diagram of this Golgi apparatus also. Again, see this is the structure of Golgi apparatus. अब देखो उसमें क्या है. ये जो साइड है, right, this is nothing but a concave side of Golgi apparatus, right, and this is nothing but a convex side of Golgi apparatus, राइट. अभी हमने बोला है कि गोल्गी एपरेटस जो होता है, अगेन इट इज मेड अप ऑफ शीट्स. देखिए ये जो शीट फॉर्म में है, पतली पतली शीट्स के फॉर्म में है, राइट. देन वैक्यूल्स है, ये स्पेरिकल कंपोनेंट्स जो दिखाई दे रहे हैं इस तरफ, राइट, एंड वेसिकल्स जो छोटे स्पेरिकल कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं ऑन दिस साइड. तो कॉन्केव साइड के तरफ जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो कॉन्केव साइड, दीज आर द वैक्यूल्स, राइट. तो वैक्यूल्स जो होते हैं वो कॉन्केव साइड के तरफ होते हैं, राइट, और जो वेसिकल्स होते हैं वो कॉन्वेक्स साइड के तरफ होते हैं. कॉन्केव साइड जो है उसको बोलते हैं ट्रांसफेस भी बोलते हैं. कॉन्केव साइड को ट्रांसफेस भी बोलते हैं, राइट, एंड कॉन्वेक्स साइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिसफेस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिसफेस, राइट. और जो मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, राइट, इट इज ऑलवेज फ्रॉम सिस फेस टू ट्रांस फेस. जो भी मटेरियल ट्रैवल करते हैं, राइट, या सर्कुलेट होते हैं या डिस्चार्ज होते हैं या सिक्रीट होते हैं, दे आर ऑलवेज फ्रॉम सिस फेस टू ट्रांस फेस, राइट. इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम इन दिस डायरेक्शन, फ्रॉम सिस फेस टू ट्रांस फेस. ओके, अब देखते हैं फंक्शंस क्या है. Secretion is a major function of Golgi apparatus. All types of substances such as enzymes, hormones and proteins which are to be secreted are packed in vesicles by Golgi apparatus for passage to outside. देखिए, हमने बोला है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है उसमें प्रोटीन्स बन रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में. और ये प्रोटीन्स मतलब ही क्या है, एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, राइट. सो बनने के बाद ऑल दीज प्रोडक्ट्स दे आर स्टोर्ड इन दिस गोल्गी एपरेटस. ठीक है, स्टोर होता है. फिर पैकेजिंग का काम होता है. पैकेजिंग का काम क्यों? क्योंकि सेल की अलग अलग जगहों पे या अलग अलग ऑर्गेनेल्स को इन चीजों की जरूरत है. ठीक है, तो पैकिंग होगा और उसको फिर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, राइट, बाहर के तरफ, राइट, इन थ्रू साइटोप्लाज्म. जिस ऑर्गेनेल को जिस एंजाइम, हार्मोन या जिस प्रोटीन की जरूरत है उसके हिसाब से सिक्रीट करता है गोल्गी एपरेटस. एक दूसरा, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स, राइट. लाइजोसोम्स क्या है, ये अगले नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट ऑर्गेनेल ही लाइजोसोम है, राइट. तो लाइजोसोम्स बनते कहाँ पे है, गोल्गी एपरेटस में बनते हैं. और दूसरा ये जो फंक्शन हम लोग बोल रहे हैं गोल्गी एपरेटस का, दैट इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑल्सो, पैकिंग ऑल्सो एंड देन सिक्रीशन. सो दिस इज स्टोरेज, पैकिंग एंड सिक्रीशन इज द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस. देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये है गोल्गी एपरेटस, ये उसका ट्रांसफेस है और ये उसका सिस फेस है, राइट. तो जो भी चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ने बनाई हैं वो जाएगी कहाँ पे, सबसे पहले गोल्गी एपरेटस में जाएगी. गोल्गी एपरेटस में वो स्टोर होगी, वहां पे पैकेजिंग होगा और उसके बाद, राइट, उसके बाद थ्रू दीज वैक्यूल्स,
Okay, these material which has been prepared or produced by endoplasmic reticulum, it will be secreted by Golgi apparatus. So Golgi apparatus का main function क्या है? To store, to pack and to secrete the different substances for the to the different organelles as per requirement. And second function is the formation of lysosomes also. In the next part, we will see what are lysosomes. Thank you.